Good morning, dear students. Today we are going to solve some numericals which related to the NCERT books. You are studying about the system of particles and rotational motion. In previous video you asked what is the acceleration when a rolling body rotate at the inclined plane. First we are going to study some formulas which related these chapters. When a body makes by many particles, we know that every body makes by many particles which masses is m1, m2, m3. If you find the center of mass of this body, then center of mass of the body is vector RCM. Center of mass denoted by vector RCM, means center of mass, distance of center of mass. So, if the body makes by two particles, if the system have two particles, then the center of mass, यदि कोई सिस्टम टू पार्टिकल्स से बना हो तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास व्हेन अ बॉडी makes by two particles? If the mass of the particle be m1 and m2 and distance from origin r1 and r2, then the center of mass RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. Equation of rotational motion. When a body rotate about the axis, then what is the equation of rotational motion? You know what is the equation of the linear motion? V is equal to u plus at. V is equal to u plus at and S is equal to first equation, linear equation, V is equal to u plus at, S is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. Similarly, the equation of rotation be, if the initial angular velocity is omega naught and after t time the velocity, angular velocity of the body is omega, then the equation of motion omega is equal to omega naught plus alpha t, where omega is the final velocity, angular velocity, and omega naught is the initial angular velocity, and alpha is the angular acceleration and t is time. But what is angular velocity? You know, the angular velocity is denoted by omega, and omega, that angular displacement cover in unit time is called the angular velocity, unit radian per second, and dimensional formula t minus 1. And what is the angular acceleration? The rate of change of angular velocity, is called the angular acceleration, unit be radian per second square, and dimensional formula t minus 2. ओके, आपको मैंने बताया कि जो लीनियर वेलोसिटी, when study you about the translational motion, then you know the equation of motion v is equal to u plus at, where v is the final velocity and u is the initial velocity, and a acceleration, linear acceleration, and t is time. But when the body rotate about the axis, then the equation of the motion, rotational motion, omega is equal to omega naught plus alpha t, and theta is equal to omega naught plus half alpha t square. This is the second equation of the rotational motion. And third equation of the rotational motion be omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta, where alpha is the angular acceleration, theta is the angular displacement, and
omega square means omega is the final angular velocity. Here is some formula related to the moment of inertia and torque. What is the torque? When a body fixed at a point and apply a force to other end, then body rotate about this axis. This is called the moment of inertia. This is called the torque, moment of force. Moment of force tau, moment of force is denoted by tau. Tau is equal to Fd. This is the vector quantity. Tau is a vector quantity. Tau जो है आपका vector quantity है. Tau means moment of force. Moment of force means tau, and power of the rotational motion tau into omega, where tau is the torque or moment of force and omega is the angular velocity. Here angular momentum. What is angular momentum? The moment of the linear momentum. The moment of the linear momentum is called the angular momentum, or linear momentum is the linear momentum denoted by P, which is equal to the m into v. You can say the product of the mass and velocity. The product of the mass and velocity is called the linear momentum. मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, और लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट है, घुमाव है, वह एंगुलर मोमेंटम होता है. सो द एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल. एल इज इक्वल टू पी इंटू डी. ओके, और टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. Other definition of the torque, the rate of change of angular momentum is called the tau. This is the tau. And moment of inertia. Moment of inertia, the product of the mass and square of distance, perpendicular distance from center of mass. I is equal to mr square. Sigma I to 1 is equal to n, 1 to n mr square. And unit is kilogram meter square, and dimensional formula ml2. And other formula in the form of the radius of gyration, moment of inertia is equal to I is equal to mk square, where k is the radius of gyration. Rotational kinetic energy. What is kinetic energy? The linear kinetic energy when the body in motion, then this produce the energy. This energy is called the linear kinetic energy, and this time when the body rotate about the axis, then the kinetic energy called the rotational kinetic energy, which is equal to the half I omega square, where I is the moment of inertia and omega is the angular velocity, and tau is equal to I into alpha. Tau moment of force or torque, I is the moment of inertia and alpha is the angular velocity. The angular momentum, the relation between angular momentum and moment of inertia. Relation between, आपको पीछे मैंने ये सब डिराइव भी किया है. इस वीडियो में न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, जबकि इसके पीछे की सॉरी टॉपिक मैंने डिराइव करके दिया है वीडियो में, अलग अलग वीडियो में होगा. तो L is equal to the angular momentum. The relation between angular momentum and moment of inertia is L is equal to I into omega, where L is the angular momentum, I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. Conservation of angular momentum. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. Conservation of angular momentum means tau, if does not apply the external torque on a body, then its angular momentum constant. Means I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. Means dl upon dt is equal to 0, dl is equal to 0. L is constant, L is the constant. Kinetic energy of the rolling body. When a body doing the rolling motion, what is rolling motion? Which type is motion is rolling motion? Translational, the combination of rotational motion plus translational motion. रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वही है रोलिंग मोशन.
अगर आपसे किसी बॉडी, रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए कहता है तो आप सबसे पहले फाइंड करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स हाफ mv स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल मोशन विच इज इक्वल टू द हाफ I ओमेगा स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन. When a rolling body rolled without slipping on the inclined plane, then the acceleration A is equal to g sin theta upon 1 plus I upon mr square, where I is the moment of inertia. डिफरेंट बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होती है. उसके बेस पे यहाँ पे वैल्यू आप पुट करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कि व्हेन अ बॉडी rolling at the inclined plane, then the moment of inertia of the different bodies are different. So the moment of inertia of a thin rod, passing through its center, जब एक्सिस इसके सेंटर से पास करती हो तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to 1/12 ml square, where L is the length of the rod and m is the mass of the rod. यह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बॉडीज़ का लिखा है मैंने. मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का जब एक्सिस उसके सेंटर से, जब एक्सिस के सेंटर से पास करती हो तो I is equal to 1/12 ml square, and when the axis passing through its one end and perpendicular to the plane, जब एक्सिस परपेंडिकुलर हो प्लेन के और इसके एक एंड से क्रॉस करती हो, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थिन रॉड I is equal to 1/3 ml square. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना, अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, रेक्टेंगल के रूप की बॉडी है, उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to m is the mass of the rectangular lamina, L square plus b square upon 12, where L is the length of the rectangle and b is the breadth of the rectangle. And moment of inertia of a circular ring, when the axis passing through its center, इस रिंग के सेंटर से जब एक्सिस पास करता हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? I is equal to mr square अबाउट इट्स डायमीटर. जब डायमीटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल का निकालना हो, सर्कुलर रिंग का, देन I is equal to half mr square, where m is the mass and r is the radius of the ring. एंड टेंजेंट के थ्रू अगर हो, एक्सिस के टेंजेंट के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट and perpendicular, then tangent always perpendicular. So the circular ring, when the tangent passes, then the axis passes through its tangent, then the moment of inertia is equal to 3/2 mr square, where m is the mass and r is the radius. And moment of inertia of a disc का moment of inertia when the axis passing through its center, then I is equal to half mr square, where m is the mass and r is the radius, where r is the radius, smaller r is the radius. And moment of inertia about its diameter, I is equal to 1/4 mr square, and tangent through moment of inertia of a disc, so I is equal to 5/4 mr square. And moment of inertia of a cylinder, solid cylinder, moment of inertia of a solid cylinder when axis passing through its symmetrical axis. moment of inertia of a solid cylinder, सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करनी हो जो उसके सिमेट्रिकल एक्सिस से जाती हो, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to m half mr square, where m is the mass of the cylinder and r is the radius of the cylinder. And moment of inertia of a hollow cylinder, I is equal to m r square, where m is mass and r is the radius. Then moment of inertia of a solid sphere when the axis passing through its diameter, then the moment of inertia I is equal to 2/5 mr square. Moment of inertia of a solid sphere 2/5 mr square, where m is the mass of sphere and r is the radius of sphere. And moment of inertia of a solid sphere when the axis passing through its tangent,
then the moment of inertia I is equal to 7/5 mr square. Okay, and what is the moment of inertia of the hollow cylinder, hollow sphere? Then I is equal to 2/3 mr square when the about the diameter through the moment of inertia 2/3 mr square, and moment of inertia its tangent through then 5/3 mr square. This is the total formula of this chapter of system of particles and moment of inertia. Other topic, we are going to solve some numerical from NCERT book. Here is some numericals, first numericals of the NCERT books. First numerical is given in the HCl molecule. In the HCl molecule, the separation between the nuclei of the two atoms is about 1.27 angstrom. Find approximate location of the center of mass of the molecule given that the chlorine atoms 35.5 times as massive as a hydrogen atom, and nuclei, all the mass of an atom is the concentrated in its nucleus. Given hydrochloric molecules HCl, where hydrogen and chlorine. The separation between the nuclei of the two atoms about 1.27 angstrom. कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उनके एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है वह 1.27 एंगस्ट्रॉम है, और यदि हाइड्रोजन के मास का 35.5 टाइम क्लोरीन का मास हो तो सही लोकेशन सेंटर ऑफ मास की क्या है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल याद करिएगा, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मैंने सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए दो पार्टिकल्स का एक फार्मूला आज भी लिखाया और पीछे वीडियो में भी मैंने डिराइव किया था. सपोज द हाइड्रोजन इज सेपरेट एट द ओरिजिन and chlorine separate at the x-axis from distance 1.27 angstrom. दिया था कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वह 1.27 एंगस्ट्रॉम है, और हाइड्रोजन के मास का suppose the mass of hydrogen be m. अगर m हाइड्रोजन का मास आपने सपोज किया तो उसका 35.5 टाइम मास है क्लोरीन का, देन द मास ऑफ द क्लोरीन इज 35.5 kg. Okay, and hydrogen is separate at origin, then the R1 is equal to 0, and chlorine is separated 1.27 angstrom, then R2 is equal to 1.27 angstrom, or we can write 1.27 into 10 power 10 meter minus 10 meter. Okay, दिया था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस है 1.27 है, तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास की सही लोकेशन क्या होगी? कितनी पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल्स हैं, गिवन 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स दिया है. सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल्स का मैंने फॉर्मूला बताया, वेक्टर RCM सेंटर ऑफ मास is equal to m1 r1 plus m2 r2
upon m1 plus m2. Okay, this is given. Putting the value of m1 r1 and m2 r2. Then the center of mass, the mass m1 be m and r1 be 0, hydrogen, the mass of hydrogen m, and distance at origin, plus m2 is 35.5 kg. तो m2 क्लोरीन का मास जो होगा इसका इतना टाइम है, या m तो इतना टाइम माने m हो गया 35.5 m इंटू r2 मीन्स 1.27 इंटू 10 पावर माइनस 10 अपॉन m प्लस हाइड्रोजन का मास m1 मीन्स m एंड m2 इज इक्वल टू 35.5 m. Solve this equation. This is 0, so this value 35.5 m into 1.27 into 10 power minus 10 अपॉन ऐड करते हैं तो 36.5 m. Okay, then you find this 35.5 m into 1.27 into this m cancel, multiply by 35.5 into 1.27 we find 45.0885 into 10 power minus 10 upon 36.5. डिवाइड बोथ, दोनों को आप डिवाइड कर दो, और आप जब डिवाइड करते हो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है 1.27, डिवाइड दिस 1.27 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर. दिस इज योर आंसर. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द NCERT बुक्स. न्यूमेरिकल्स, अदर न्यूमेरिकल इज so that the area of a triangle contained between the vector A and B is 1/2 the magnitude of the A cross B. जो आपको जो प्रूव करना है, एरिया ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी के बीच जो एरिया कंटेन हो जो बनती है इस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी इज टू वेक्टर गिवन एंड एंगल इज थीटा. इससे जो एरिया कंटेन होती है आपको प्रूव करना है कि वह एरिया जो आपने एरिया बताया वह एरिया इक्वल होगा इसके क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ होगा. तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड कैसे करोगे इसका? ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस वर्टिसेस ए बी एंड सी. मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हमने एक ट्रायंगल यदि ड्रा किया तो इस वर्टिसेस से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है मैंने, तो क्या साइड ए एन आप फाइंड कर सकते हो? वैल्यू ऑफ ए एन इज इक्वल टू ए एन थीटा. फॉर थीटा के लिए ए एन परपेंडिकुलर लाइन है. दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस एंगल भी 90 डिग्री, सो इट इज हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा. मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी is equal to sin theta. Okay, so an is equal to b sin theta. an is equal to b sin theta. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अब फाइंड कर सकते हैं यदि आपको बेस पता हो ट्रायंगल का और परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड पता हो. अगर बेस पता है और एक वर्टिसेस से अपोजिट वर्टिसेस पे ड्रा किया गया एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर लाइन पता है तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है इसका, बेस CB जिसकी वैल्यू कितनी थी CB की A, इंटू एल्टीट्यूड की वैल्यू आपने निकाला है AN, कितना है B साइन थीटा। यह एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसे हम डेल्टा से दिखाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो गया। हमें प्रूव करना है कि जो एरिया है ट्रायंगल की वह AB के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ होगा, AB के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ होना चाहिए यह एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो AB का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB साइन थीटा कैप n, जो डायरेक्शन देता है। और कैप n की डायरेक्शन क्या है, AN इज परपेंडिकुलर, जिसका कैप n मीन्स यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, सो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। मैंने वेक्टर क्वांटिटी में वीडियो में देखिएगा, वहाँ बताया गया है यूनिट वेक्टर है कैप n। सो AB मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड ऑफ AB साइन थीटा कैप n। और यदि कैप n को हम हटा दें तो आपको मिलता है AB साइन थीटा। अब आपके सामने जो है प्रूफ क्या करना था, सो दैट द एरिया ऑफ द कंटेंट बिटवीन द वेक्टर A एंड B, AB से जो एरिया बनेगी इस ट्रायंगल से वह एरिया हाफ होनी चाहिए इसके क्रॉस प्रोडक्ट की। देखिए यह एरिया का फॉर्मूला था, एरिया मिला, एरिया डेल्टा, यह हाफ है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, उसके इसके क्रॉस प्रोडक्ट की एरिया क्या हो गई, हाफ हो गई। यही आपको प्रूव करना था। ओके, तो आपने प्रूव किया कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ओके, तो यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। NCERT का क्वेश्चन 4 था जिसको प्रूव करना था। अब NCERT बुक से क्वेश्चन नंबर 8 जो न्यूमेरिकल्स है उसको आप देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि 2 रॉड से, इसको इरेज करते हैं, नोट करना है तो कर लीजिए। अदर न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 8, NCERT बुक का 8वां क्वेश्चन दिया है कि 2 रिजिड सपोर्ट है और उससे आपने फिगर भी ड्रॉ किया है, दिखाया है बुक में। इससे एक रॉड जो 2 मीटर लॉन्ग है उसको हैंग कर दिया आपने। यह 2 मीटर लॉन्ग रॉड है, इसका नाम हम दे देते हैं A एंड B। इसको हैंग करते हैं इस सपोर्ट से और इसको भी हैंग करते हैं यहाँ से। ओके, तो यह आपने इसको हैंग कर दिया A एंड B को, और करा इसका जो रॉड की लेंथ है वह 2 मीटर है, और जो इसका वेट है, जो कहाँ से आपने इसको हैंग किया है, ए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बार रॉड वेट W सस्पेंडेड एट द रेस्ट बाय 2 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग से इसको आपने हैंग किया। 2 स्ट्रिंग से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपने इसको हैंग किया। क्वेश्चन कह रहा है इसका कि T1 कितना है और इस पे टेंशन कितना होगा, T1 एंड T2, जबकि गिवन दिया है दिस एंगल इज 36.9 एंड दिस एंगल इज गिवन 53.1 दिया था कि एक रिजिड सपोर्ट से 2 मीटर लॉन्ग रॉड जिसका वेट W था आपने हैंग किया है, और यह स्ट्रिंग पहले सपोर्ट से एंगल बनाती है 36.9 का, और दूसरे सपोर्ट से दूसरी स्ट्रिंग जो एंगल फॉर्म करती है 53.1, जबकि यह लेफ्ट साइड से हैंग किया गया है वेट को कुछ डिस्टेंस पे। सपोज वैसे फिगर में गिवन दिया है
this distance be d. If the distance OA is d, यदि डिस्टेंस OA की वैल्यू d हो तो क्या OB की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। OB इज इक्वल टू, यह पूरा 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 मीटर, इसमें से यह पार्ट d मीटर है, मैंने माइनस कर दिया तो 2 माइनस d, 2 माइनस d हो गया, माने यह पार्ट कितना आ गया 2 माइनस d मीटर। अब क्वेश्चन फिर, टेंशन जो है मैंने कहा था वेक्टर में यदि कहीं फोर्स ना ही वर्टिकल अप्लाई हो रहा हो ना ही हॉरिजॉन्टल, अगर कुछ एंगल पे फोर्स अप्लाई होता है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसके 2 कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट तो यह होगा और अदर कंपोनेंट इज दिस। अच्छा, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जो यह कंपोनेंट्स है इससे सटा हुआ साइड है, इसलिए यह एंगल भी 36.9 होगा और 36.9 से सटी हुई साइड cos थीटा होगी, अर्थात T1 cos 36.9, यह इसका कंपोनेंट हो गया। कैसे हुआ पता है, दिस एंगल भी 36.9 एंड सो दिस इज 36.9 बिकॉज दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब 2 पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो अंदर का एंगल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वह इक्वल होता है। सो यह भी कितना होगा 36.9 होगा, यह 36.9 और यह इसके पैरेलल होगा, जो इसके इक्वल होगा वह होगा परपेंडिकुलर T1 साइन थीटा मीन्स 36.9। ओके, हमने बताया इसके कंपोनेंट्स T1 cos थीटा क्यों लिया, क्योंकि यह थीटा से जो टच एंगल होता है, थीटा से टच वाली साइड जो होती है वह cos होती है। और कैसे होती है यह आपको पता है, क्योंकि यह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। सो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, और यह परपेंडिकुलर फ्रंट वाली साइड है तो परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा, तो T1 sin इतना। सिमिलरली इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, T2 के भी। हमने क्या किया, इसका भी एक यह कंपोनेंट होगा और अदर कंपोनेंट इज दिस। अब यह कंपोनेंट, यह एंगल इस एंगल की इक्वल होगा बिकॉज दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन and this is transversal line intersect, so alternate internal angle always equal, so this is 53.1। 53.1 से सटा हुआ साइड है तो यह होगा T2 cos 53.1, यह कंडीशन समझ में आ गई। और यह परपेंडिकुलर होगा, सो T2 sin 53.1, यह कंपोनेंट्स हो गया। बट आपको फाइंड करना है कि जो स्ट्रिंग है उस पर टेंशन कितना, जो दोनों स्ट्रिंग आ रही है उस पर टेंशन कितना है, जबकि एंगल डिफरेंट है। तो टेंशन फाइंड करने के लिए इस वेट को जो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है W, इसको बैलेंस कौन करता है। आप FBD पे आइएगा, जो हमने डायग्राम बताया था ड्रा करना, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, उसी के अनुसार एक फोर्स W नीचे अप्लाई होता है और इसी पॉइंट पे एक फोर्स ऊपर और दूसरा यह ऊपर, इन दोनों से बैलेंस होता है W। सो आप लिख सकते हो T1 cos 36.9 प्लस T2 cos 53.1 इज इक्वल टू W, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अच्छा, दिस रॉड रेस्ट एट द रेस्ट, यह रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि एक फोर्स इधर का जो अप्लाई हो रहा है इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तभी तो रेस्ट में है। या यह ज़्यादा होता, यह इससे मैक्सिमम हो जाता, यह ज़्यादा हो जाता तो अपनी तरफ स्ट्रेच कर लेता, या यह ज़्यादा होगा तो अपनी तरफ स्ट्रेच कर लेगा। क्योंकि स्ट्रेच कोई नहीं कर रहा है, अपनी तरफ कोई नहीं खींच रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे। इसका मतलब T1 साइन
36.9 इज इक्वल टू T2 साइन 53.1, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। और हमने आपको प्रिंसिपल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, कि यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली रेस्ट में हो, अगर बॉडी पे कई फोर्स अप्लाई हो रहा हो और बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में हो, तो क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। फिर से याद करिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स था लेफ्ट हैंड टॉर्क इज इक्वल टू राइट हैंड टॉर्क, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो जो यह टॉर्क या क्लॉकवाइज जो बन रहा है, इसके द्वारा इस फोर्स, यह इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसी के थ्रू अगर छोड़ दिया जाए तो यह रोटेशन कर सकता है। तो यह कौन सा है, कौन सा टॉर्क? क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क T1 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क T2। जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वह एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स से। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। अब हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा फोर्स बनाता है? यह T1 cos 36.9 इंटू डी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एंड द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वह डी हमने लिखा, यहां डी है, इज इक्वल टू F2 की वैल्यू, जो यह फोर्स होता यह अप्लाई करेंगे तो रोटेट कराना चाहेगा इसके एक्सिस के थ्रू इधर एंटी क्लॉकवाइज। F2 T2 cos 53.1 इंटू D2 2 माइनस डी, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और 2 को डिवाइड कर दीजिए आप, उससे हमारा एक फायदा होगा कि हमें वैल्यू कुछ मिल सकती है डी की, कितनी दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे यह कंसंट्रेट है, क्वेश्चन में यही होगा। डी क्या है? डिस्टेंस माने कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास है, ए से कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है। टेंशन में निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं अगर डी फाइंड हो जाए तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका T1 cos 36.9 इंटू डी and T2 cos 53.1 into 2 minus d, dividing equation 3 and dividing equation 3 and 2 और 3 को डिवाइड करते हैं तो T1 cos 36.9 into d इज इक्वल अपॉन लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करते हैं अपॉन T1 साइन 36.9 इज इक्वल टू, यह कितना है आपकी वैल्यू है T2 cos 53.1 2 माइनस डी अपॉन T2 साइन, यहाँ पे है सेकेंड इक्वेशन में 53.1। T2 कैंसिल, T1 से कैंसिल हुआ तो साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मीन्स कॉट थीटा। सो वी कैन राइट कॉट 36.9 डी इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन मीन्स कॉट 53.1 साइन cos 53.1 अपॉन साइन 53.1 मीन्स cot 53.1 इन ब्रैकेट 2 माइनस डी। ओके, अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू ग्राफ दिया है, लॉग टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दिया हो
यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दिया है तो उस टेबल से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको फाइंड करनी हो वैल्यू, तो cot 36.9 की वैल्यू होती है। अगर ग्राफ से देखा जाए तो 4/3। आप इसको लॉग टेबल से, एग्जाम में लॉग टेबल में दे देगा वैल्यू, या दे देगा एग्जाम में देगा तो cot की वैल्यू दे सकता है, cot 36.9 की वैल्यू दे देगा, वो देता है। अगर सिंपल वैल्यू हो जैसे cot 45 तो नहीं देगा, 90 है तो नहीं देगा, 60 है तो नहीं देगा, 30 है तो नहीं देगा, 120 है तो नहीं दे सकता है, 180 है तो नहीं दे सकता है। लेकिन अगर 36.9 है तो cot की वैल्यू दिया रहेगा आपके सामने फ्रंट पे। तो 4.3 इंटू डी इज इक्वल टू, इस cot को हम कन्वर्ट करते हैं 10 में। वी कैन राइट cot 90 माइनस 36.9 इंटू 2 माइनस डी। cot 90 माइनस थीटा, 4/3 इंटू डी, cot 90 माइनस थीटा मीन्स tan थीटा, tan 36.9 2 माइनस डी। बट आपको पता है कि यदि cot 36.9 की वैल्यू 4/3 तो उसी का अपोजिट होता है tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 इंटू डी इज इक्वल टू 3/4। 3/4 tan की वैल्यू cot की अपोजिट होती है, इंटू 2 माइनस डी। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 4 जा 16/9, 3 3 जा 9d इज इक्वल टू 2 माइनस डी। सो 16/9d प्लस d इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं तो 25d/9 इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 18/25 मीटर की डिस्टेंस पे ए से जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी जो होगी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वह कितने डिस्टेंस पे है, इस पार्टिकल से, ए वाले स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग ए आ रही है उससे इतने मीटर की डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ